Hello students, welcome to our this class, and here in this class we are going to see some brief questions of your chapter number 9, carbon compounds. Okay students, already we have seen some objectives of this chapter. Okay, if you haven't watched the video, please go and watch that video first. Okay, now in this chapter, as already you all are aware about that, it is all about IUPAC nomenclature. Okay, different kinds of structure. Okay, it is important. In this chapter, functional groups are very important, students. Okay, functional groups, variety, different types of hydrocarbons. Okay, straight chain hydrocarbon, branch chain hydrocarbon, cyclic hydrocarbons. This is very important. Alkanes, alkenes, alkynes, this is very important. Okay students, and IUPAC nomenclature. ठीक है, so you have to practice this everything for your upcoming exam. It is very easy. Okay, if you pay attention towards that, it will not at all difficult for you. It is very easy for you. Okay, go through it very nicely. Now here in this very first question says, give scientific reason. Ethylene is an unsaturated hydrocarbon. ओके, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड्स हु हैज़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर. ओके, सो इथिलीन ऑल्सो हैज़ डबल बॉन्ड इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. Yes, and hence that's why ethylene is an unsaturated hydrocarbon. Now the second question, the color of iodine disappear in the reaction between vegetable oil and tincture iodine. ओके, तो ये जो कलर होता है आयोडीन का वो डिसअपियर क्यों होता है? लेट्स सी. वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड एंड हैव मल्टीपल बॉन्ड्स इन देयर फंक्शनल ग्रुप. ओके, since they have multiple bond, they have tendency, they undergo addition reaction to form saturated compound. Okay, this tincture iodine undergoes addition reaction with vegetable oil and therefore its color gets disappeared on mixing with vegetable oil. Okay, next, carbon has the tendency to form many compound. Carbon, why it has tendency to form many compound? As you all know that carbon is very important. Okay, our body is made up of carbon. It plays a very important role. Okay, everywhere it has the different kinds of variety of uses. It can form a many compound. Why? So here carbon has the property of catenation. Carbon also has ability to form multiple bonding. Okay, carbon is a tetravalent and it has property of isomerism. Okay, मतलब different kind of structure gets formed from joining the carbon different compounds. Okay, so due to the above properties carbon has many compound. Okay, तो उससे क्या होता है? आइसोमेरिज्म से कार्बन क्या करता है? डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है from the different kinds of chain, whether it is long chain, straight chain, branch chain. Okay, like that. Benzene is an aromatic compound. Aromatic compounds are unsaturated and they are cyclic in nature. Yes, benzene is also aromatic because it is unsaturated and cyclic in nature and with 6 carbon bonded to each other by alternate single and double bond. बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से. ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन लाइक दैट. ठीक है, सो प्रिपेयर विथ इट. नाउ आंसर द फॉलोइंग 2 मार्क्स क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कैटेनेशन पावर. कैटेनेशन पावर मतलब क्या होती है? कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम and this results in formation of big molecules. मतलब कार्बन 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 एक big chain form होती है. So this property of carbon is called as catenation power. Okay, explain the term structural isomerism with an example. तो यहाँ पे it is a phenomenon in which the compounds having okay, तो यहाँ पे compounds में क्या होता है?
it having different structural formula and have same molecular formula. Okay, उसका structural formula कैसे रहता है, different, and molecular formula कैसे रहता है, same. Okay, and butane and isobutane are the structural isomers as they have different structural formula but they having same molecular formula, that is C4H10. Okay. Okay, here what is oxidizing agent and reduction? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, द सब्सटेंस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, जो ऑक्सीजन को डोनेट करता है, ऑक्सीजन को दूसरों को देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. व्हाट इज रिडक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन or loses oxygen is called as reduction, is called as reduction reaction. So ethylene is reduced to ethene. ethylene जो है वो reduced हो जाती है to form what, ethene. Okay, what is catalyst and write its example. तो catalyst मतलब क्या, ऐसा substance होता है which increases the rate of chemical reaction without causing any disturbance to heat. Okay, तो विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड. इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन निकल और प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ठीक है. ओके, नाउ ये चैप्टर में डिफरेंट रिएक्शंस है. फॉर एग्जांपल एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. ओके, तो वो रिएक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है. सो व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद अनदर कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट कंटेन ऑल द एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन. एडिशन होता है, ऐड होते हैं. यस. सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड एज देयर फंक्शनल ग्रुप. नाउ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस हैविंग एस्टर एज द फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल. ओके. होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे देखो अल्कोहल का सेम फंक्शनल ग्रुप है बट ऑन हैविंग सिक्वेंशली इंक्रीजिंग लेंथ. बट यहाँ पे कार्बन 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 जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं. पहले देखो एक कार्बन था, फिर यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, फिर 3 कार्बन हो गए, फिर 4 एंड सो ऑन. तो उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज. बट इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो रीड करना ये क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. आई हैव रिटन गिवन आंसर्स टू यू. यू हैव टू रीड इट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस का भी क्या दिया है, मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है आपको. ओके, so this is very important students. You will understand it, you just have to read it, you have to remember the formula example के साथ. Okay, now answer the following 3 marks question. Okay, homologous series of alkanes. तो यहाँ पे आपको ये fill in the blanks करने को आएगा. तो क्या करना है यहाँ पे, you have to count the number of carbon atom. यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. ओके, यहाँ पे देखते हैं पहले 3 के बाद 1 2 3 4. ओके, एंड CH2 यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे, CH2 यूनिट्स 2 है. ओके, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3. 3 कैसे, ये CH3 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू CH2 एंड CH2 एक और H. ओके, वैसे मैंने क्लास में आपको ये समझाया था, जो क्लास में प्रेजेंट थे उनको समझा होगा. ओके, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज़ ही करना है. जैसे कि देखो 3 के बाद 4 5 6, फिर यहाँ पे भी 4 5 6. ओके, यस. नाउ हियर ऑल्सो यू हैव टू इंक्रीज इट्स लेंथ. 1 2 के बाद 3 4
यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 3 4 5, बट यू हैव टू काउंट दिस। और यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, आई हैव रिटन आंसर्स ऑफ दिस वाला चार्ट। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, आपको लिखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। तो O एंड H ये कौन सा किसका फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स? अल्कोहल। यस। नाउ C डबल बॉन्ड OH किसका है? अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O किसका है? कीटोन। ठीक है, आफ्टर दैट C डबल बॉन्ड OOH, दैट मीन्स COOH, it is of carboxylic acid. Now this O is of ether, this is of ester, okay, and NH3 किसका है? amines। तो functional groups are very important, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। Now here also you have to fill this chart, okay, I have given answer of पहले का आंसर, इसका फंक्शन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, ओके। ये किसका है? ये सेकंड वाला जो है वो है इथेन का, तो इथेन का आंसर क्या है? ये सब। आफ्टर दैट ब्यूटेन का आंसर क्या है? लास्ट वाला, यहाँ पे देखो 4 कार्बन है। यस, फिर आपको ये खुद से लिखना है, 7 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओके। एंड 8 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। ठीक है, तो उसका ऐसे ही आपको सब तो 8 कार्बन ऐसे ड्रॉ करने हैं स्ट्रेट चेन में, और उसके साथ उसके हाइड्रोजन भी ऐसे ड्रॉ करने हैं, सो दैट यू विल गेट C8H18, ओके। Okay, now you have to write down its IUPAC name. I have already explained this in classroom. Okay, here I have given its answer. Go through the answer, students. Okay, I have already explained you this, but here I have given its answers. Okay, go through this answer. Now this chart, this is very important chart, so many questions will come from this chart. For example, ओके, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने को आएगा। ओके, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है वो आपको लिखने को आएगा। प्रोपेन, तो उसका आपको स्ट्रेट चेन में ऐसे बनाना पड़ेगा। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड, बट अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। ब्रांच चेन में सब ब्रांच मिलके, ये देखो, ओके, आइसोब्यूटिलीन अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है। और ये वाला, दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन, हियर 1 एक्टिविटी इज़ गिवन, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा है। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन, तो प्रोडक्ट्स इथाइल इथेनॉइड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, ये देखो। एंड इन इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस एंड परफ्यूम्स, ओके। एंड कैटलिस्ट यूज्ड होता है एसिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन इट्स रिएक्शन। सो आई हैव रिटन ओवर हियर द रिएक्शन, ओके। गैस, कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? वाई डू स्मॉल बबल्स ऑफ लाइम अपीयर्स इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन अ बिग टेस्ट ट्यूब विच पासेस थ्रू बेंट गैस डिलीवरी ट्यूब टू स्मॉल टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स हैं, यस, ये है टेस्ट ट्यूब, ओके। सो विच कंटेनिंग लाइम वाटर, एंड दैट्स वाई बबल्स आर सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब। Now here you can see fourth wala, what is the change in the color of limonite on passing CO2 gas through lime water? It turns lime water milky, वो milky में convert हो जाता है, okay। So this is about your carbon compounds का brief questions. As I have already told you, please IUPAC name का practice करना, okay, और ये जो different structure है वो भी practice करना, ठीक है। थैंक यू।